श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। सेवाकृति गुरुराज्ञा बाधरंगा हरिक्षया अतः सेवा परप्तित्तम विदया स्थियतां संस्कृत सेवाकृति इति ये हम संस्कृत अभी ले सेवाकृति इति कृति ही सेवा कृति ही इति विसर्ग जो है वहाँ को रेफ हो गया कृति रीति हो गया सेवाकृति सेवाकृति ही इति सेवाकृति गुरुराज्ञा ये बात जो कही वो रेफरेंस वहाँ कोट कर रहे हैं इति सेवाकृति जो मूल में कही वो इति सु कह के सेवाकृति ही इति गुरुवाज्ञा तो गुरुवाज्ञा में भी हाँ वहाँ वकार होकर के बन गया गुरुवाज्ञा गुरु आज्ञा गुरुवाज्ञा अबाधनम यथा भवति तथा सेवाकृति पूर्वम उपेक्षिता एवं वर्तमान कदाचित विशेष पेज में 14 ना सिंह सेवाकृति ही इति गुरु आज्ञायाः अबाधनं यथा भवति तथा सेवाकृति ही पूर्वम अपेक्षिता
વર્તમાનાનામ કદાચિત કદાચિત વિશેષતો ભગવદાજ્ઞા ચિત્ત ચેત ચિત્ત પૂર્વાજ્ઞા વિરુદ્ધ ભવેત હવે તદા તથા કાર્યમિત્યા इति આશય નામ कार्यम इति आशयेन आहु બાધનમ વા પરિચ્છયા કાર્યમ ઇતિ इति आशयेन आशयेन आहु આહુ તથા તથા કાર્ય ત્યારે તે પ્રમાણે કરવું ઇતિ આશયે એવા આશયથી આહુ કહી રહ્યા છે બાધનમ વા હરિચ્છયા ગુરુ આજ્ઞાયાહ અબાધનમ યથા ભવતિ ગુરુ આજ્ઞાનું અબાધન ઉલ્લંઘન ન થાય તે પ્રમાણે તથા સેવા કૃતિ પૂર્વમ અપેક્ષિતા તેથી સેવાકરણ સેવા કૃતિ પહેલા અપેક્ષિત છે પૂર્વમાં તે વાત કહી એવમ વર્તમાનાનામ જે વર્તમાન છે એનો કદાચિત વિશેષતો વર્તમાનાનામ જીવાનામ કદાચિત વિશેષતો ભગવદ આજ્ઞા છે કદાચિત વિશેષપણે એ લોકો ઉપર ભગવદ આજ્ઞા થાય તો ગુરુ આજ્ઞા વિરુદ્ધા ભવે કોઈ કે ગુરુની આજ્ઞા સેવા ઓલવેઝ ગુરુની આજ્ઞાથી કરવી જોઈએ ત્યાં એક પ્રશ્ન આવ્યો કે કોઈ સર્કમસ્ટેન્સીસમાં જીવ વિશેષ ઉપર ભગવદ આજ્ઞા ડાયરેક્ટ થઈ જાય તો એવી પરિસ્થિતિમાં જો ગુરુ આજ્ઞાનો બાદ થતો હોય કેમ કે ભગવદ આજ્ઞા થઈ ગઈ પ્રશ્ન એ છે કે ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરવું કે ભગવદ આજ્ઞાનું પાલન કરવું જે પરિસ્થિતિ ત્યાં અંતઃકરણ પ્રબોધમાં શ્રી મહાપ્રભુ સામે ઉપસ્થિત થઈ તો એવી પરિસ્થિતિમાં કદાચિત વિશેષતો ભગવદ આજ્ઞા છે કોઈ વિશેષ કારણોસર કોઈ જીવ વિશેષ ઉપર ભગવદ આજ્ઞા થાય તો ગુરુ આજ્ઞા વિરુદ્ધ ભવે તો ગુરુ આજ્ઞાથી વિરોધ થઈ શકે છે એવી સંભાવના ઉપસ્થિત થાય તદા તથા કાર્યમ તેથી તે પ્રમાણે વર્તવું કરવું તે આશયથી આગળ કહી રહ્યા છે બાધનમ વા હરિચ્છયા જો ગુરુની આજ્ઞાનો બાદ થતો હોય તો એમાં ભગવદ આજ્ઞા કે અરે ભગવદ ઈચ્છા કે હરિ ઈચ્છાની ભાવના કરવી વિકલ્પેન બાધન विकल्पेन अबाधनम વિકલ્પેન અબાધનમ ઇતિ ઇત્યર્થે ઇત્યર્થઃ ઇતિ અર્થઃ વિકલ્પે અબાધનમ ઇતિ અર્થઃ એવં વિકલ્પેન વિકલ્પેન વિકલ્પ શબ્દ વાપો તૃતીય है विकल्पेन अबाधनम इत्यर्थः इति अर्थः एवं सति गुरुवाज्ञाः अबाधने बाधने वा सेवैव मुख्या यतो अतस्तैव स्तेयमित्याहु अत इति एवं सती આ પરિસ્થિતિ હોવા પર જો આવી પરિસ્થિતિ આવી જાય ગુરુ આજ્ઞાયાહ અબાધને બાધનેવા જો આ પરિસ્થિતિ આવી જાય અને ગુરુ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થાય કે ન થાય એવી પરિસ્થિતિમાં બાધને અથવા બાધને અબાધને અથવા બાધને વા એની અથવા કોઈ પણ સર્કમસ્ટેન્સીસ આવી જાય ભગવદ આજ્ઞા મળી જતી હોય અને ગુરુ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય અથવા ડાયરેક્ટ ભગવદ આજ્ઞા ન મળી હોય અને ડાયરેક્ટ આપણને ગુરુ આજ્ઞાનું વિધાન મળતો જ હોય કે સેવા કરો એવી પરિસ્થિતિમાં બંને સર્કમસ્ટેન્સીસમાં જ્યાં બાદ થતું હોય અથવા અબાધ થતું હોય ઉલ્લંઘન થતું હોય અથવા ઉલ્લંઘન ન થતું હોય એ પરિસ્થિતિમાં સેવા એવ મુખ્યા સેવા એવ મુખ્યા સેવા જ મુખ્ય છે अतो यतो अतः केम के यतः सेवा एव मुख्या केम के सेवा कोई पण सर्कमस्टेन्सीस માં
શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞાનું વિધાન એ જ છે કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. જીવ માટે આ સિદ્ધાંત છે, આ કર્તવ્ય છે, અને દરેક પરિસ્થિતિમાં શ્રી મહાપ્રભુએ સેવાની પ્રાથમિકતા અને પ્રમુખતા સમજાવી છે જીવ માટે. તેથી એ કર્તવ્ય મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવાના કારણે તથૈવ સ્થેયમ, તે પ્રમાણે રહેવું. ઇતિ આહુ અતઃ, તેથી એ પ્રમાણે રહેવું. કઈ પ્રમાણે રહેવું? જેમાં સેવા ક્યાં બોલો, નભતી કે નિભતી? નભી શકે. નભી શકે, બરાબર, નભી. હા. જેનાથી જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જ્યાં સેવાનો નિર્વાહ થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિમાં રહેવું, કેમ કે સેવા જ મુખ્ય છે. ये पंचलाइन आ गई कि सेवा एव मुख्यायतो अतः तथैव, તે પ્રમાણે જ સ્થેયમ, તે પ્રમાણે જ રહેવું. ઇતિ આહુ, તેથી એ આશયથી હવે આગળ કહી રહ્યા છે કે અતઃ સેવા પરમ ચિત્તમ વિધાય, તેથી ચિત્ત, આપણા ચિત્તને, આપણા અંતઃકરણની સમસ્ત વૃત્તિઓને સેવા પર બનાવીને રહેવું, એમાં જ પોતાનું સુખ માણવું. પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિને, પોતાના ચિત્તને એ પ્રમાણે ઢાળવું કે એ સેવા પર બની જાય અને એમાં જ પોતાનું સુખ છે એવું માનીને અને રહેવું. તથૈવ સ્થેયમ ઇતિ અતઃ આહુ ઇતિ. एवं सती गुरु आज्ञायाः अबाधने बाधने वा सेवा एव मुख्या यतो, केम के यतो यतः, केम के सेवा एव मुख्य यतः अतः, તેથી યત તદોર નિત્ય સંબંધ, યત અને તદનો ઓલવેઝ નિત્ય સંબંધ હોય છે. જ્યારે ત્યારે જેમ તેમ જેવી રીતે તેવી રીતે. તો યત और तद, तो यतो अतः, એટલે यतो जो है वो वाक्य कारण विसर्ग हो के बन यतः और अतः. तो सेवा एव मुख्या यतः अतः तथैव स्थेयम, તેથી તે પ્રમાણે જ રહેવું. ઇતિ અર્થો એ ઇતિ આહુ, તેથી કહી રહ્યા છે આગળ અતઃ ઇતિ. અતઃ એટલે અતઃ સેવા પરમ ચિત્તમ વિધાય સ્થિયતા સુખમ. एवं सति पर्यवसित, एवं सति स इति पर्यवसितम सुखम एव इति आशयेन इति आशयेन सुखम इत्युक्तम. एवं सुखम एवं इति एवं आशयेन सति, स इति नहीं, एवं सति आવું હોવા પર. एवं सति पर्यवसितम, जो कंक्लूड भयो वो कंक्लूड क्या भयो? एवं सति पर्यवसितम सुखमेव. ये करने से फाइनल कंक्लूजन क्या है? कि तुमको सुख मिलेगा. चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कोई भी कैसा भी आपातकाल आ जाए, तुम्हारे सामने कोई गंभीर समस्या आ जाए, या जीवन में जो भी द्वंद्व होते हो, जो भी अनुकूल प्रतिकूल, फाइनली यही तुमको रखना है कि भाई कोई भी परिस्थिति में आज अनुकूलता नहीं है, कहीं भगवत आज्ञा हुई, कहीं गुरु आज्ञा भई, देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस. आज्ञा को उल्लंघन भयो, आज्ञा को बाद भयो, आज्ञा को बाद नहीं भयो, घर में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जीवन में ये जो भी संघर्ष हो रहे हैं, फाइनली वाको जो समिंग अप है, वो समिंग अप वाको यही है कि सेवा, जीव को कर्तव्य सेवा करना है. एंड देयरफॉर वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वाको अवकाश अपने जीवन में पैदा करना ही पड़ेगा तुमको. और वाह प्रकार से अपने मानस को ऑटो सजेशन दे करके कि जीव, तू जीव है, तू दास है, तेरा सच्चा सुख भगवत सेवा करने में ही है. या प्रकार से अपने चित्त को बार बार ऑटो सजेशन से मोटिवेट कर करके और अपने अंतःकरण की वृत्ति को, अपनी चित्त की वृत्ति को ऐसे सिचुएशन में लानो कि जहां वो मानस के बारंबार वाक्य ऑटो सजेशन देने से वाकु वहां में सुख लगने लग जाए. वाकु वहां कंफर्ट जोन पैदा करनी है. वो कंफर्ट जोन वाकी पैदा करने की ये सारी सिचुएशन है. वाकु ऑटो सजेशन दे करके जीव को वहां में वह प्रकार से वाकु लानो. ये पर्यवसितम सुखमेव इति आशयेन सुखम इति उत्तम करके यहाँ में श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी कि तू यहाँ में कुछ भी चिंता मत करी. आज कहीं तो तू ये संघर्ष या कहीं घर्षण हो रहे है, तेरी अपनी लाइफस्टाइल, तेरे मानस और तेरा आबो हवा, जो तेरा वातावरण है, वहां में कहीं ये विसंवाद जो पैदा हो गया तेरे जीवन में करके अभी ये
सिचुएशन हो रही है, बट या सिचुएशन में भी लेट मी एश्योर यू कि वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अपने आप को तेरे ऑटो सजेशंस को या प्रकार से मोटिवेट करके वह डायरेक्शन में उनको ले जाइयो कि जहां तेरी चित्त की वृत्ति है आज नहीं तो कल ये या माहौल में एकदम रच बच जाए कि नहीं मेरो सच्चो सुख सेवा में है, मेरो कर्तव्य भगवत सेवा करना, क्योंकि वही में तेरो सच्चो सुख रहो पर्यवसितम सुखमेव इति आशयेन सुखम इति उत्तम करके यहाँ श्री महाप्रभु ने यहाँ कही कि अतः सेवा परम चित्तम विधाय, अतः तेथी सेवा परम चित्तम, वो चित्त तेरो कैसे होना चाहिए, वो सेवा पर बिल्कुल तेरो चित्त अंदर बाहर से या प्रकार को सेवा मय बन जाए, ऐसो विधाय, यानी विधान की बात करी, प्रयत्न विधान करने की बात करी, विधान वाकु बना करके, वो बने को कैसे, वो सत्संग के माध्यम से बने, यानी यहाँ विधान करने की ये कोई आकर के कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम जन्मजात लेकर के आए हो, नहीं तो यहाँ कोई और शब्द होते, पर विधाय कही यहाँ बात वही पे भार है। यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू फील कि ये सेवा इज द ओनली वे आउट, यही आपको कंफर्ट। आज वो भले नहीं हो रही है, यानी वो सेवा पर बना हुआ, वो अपने चित्त को वह प्रकार से बना करके विधाय, और विधाय करके फिर कह रहे हैं कि सुखम स्थियताम, वहां में तुम सर्वदा आत्म सुख ही मानिए, कि वहां में आत्मा को कल्याण, वो तुम्हारा फाइनल जंक्शन है। जैसे आज अपन कह रहे हैं भाई ये न कि प्रकार अपन अपने सृष्टि के जो वैष्णव जन समुदाय है उनको मात्र यही कह रहे हैं भाई तुम गोकुल के प्रति डाइवर्ट हो जाओ, गोकुल के प्रति डाइवर्ट हो जाओ, दादाजी के प्रति डाइवर्ट हो जाओ, बस। तो मेरो काम इतना ही मैं तुमको कह रहा हूं कि मैं तुमको जगह बता दे रहा हूं, बापू सेवा पर बनाने की जो बात है ना, वो मैं तुमको दिशा बता दे रहा हूं कि तुम्हारा सच्चो सुख वही में रहो कि तुम दादाजी के चरण रज को अपने माथे चढ़ा दो, बाकी तो वो चरण रज को सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो बाकी को सब काम कर ले, क्योंकि मैंने ये चीज कहीं बिलीव करी है, एंड बिकॉज आई बिलीव इन दैट वेरी स्ट्रांगली, देयरफॉर मैं वो दिशा तुमको एक बता दे रहा हूं कि भाई वो मुकाम है, वो मुकाम तक तुम वहां चीज को पहचान लो, बाकी तो वो चरण रज को, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है, करके फिर वो जो भी करना है वो आगे वो काम वहीं से हो जाएगा। देयरफॉर अतः सेवा परम सुखम, ये अतः सेवा परम चित्तम विधाय, तो उतनो जो काम जो अपने तक करने को है वो काम अपन यथाशक्ति यथा बल से अपन को कर दे रहे हैं, मात्र अपने हाथ में इतना एश्योरेंस अपन को दे रहे हैं, स्थियताम सुखम, सबसे बड़ा एश्योरेंस है अपने, जब ईश्वर स्वयं कह रहे हो बी रेस्ट एश्योर्ड। खाली इतना सेवा परम चित्तम विधायक को जो पार्ट है वो जीव प्रति साध्य है, वो वहां कर देना, ईश्वर ने तुमको ऐश्वर्य दे दिया, स्थियताम सुखम, बापे तेरा सच्चा सुख कर रहे हो, और क्या चाहिए। हमें फिर कंफ्यूजन कह रहे हो भाई गुरु आज्ञा भाई नहीं भाई भगवत इच्छा को कोई कभी ऐसी, अरे जो भी जीवन में तेरे उतार चढ़ाव जो भी सिचुएशन हो रहे हैं, फाइनली क्या कहोगे वहां पे जा कि भाई सेवा ही मुख्य है, वही को उपदेश दिया हुआ है, बस। अतः यतः सेवा ही वो मुख्य, अतः तथा सेम, श्री महाप्रभु ने फाइनली तीसरी बार क्या कंक्लूड किया, एक आज्ञा हो गई उल्लंघन कर दियो, दूसरी आज्ञा भाई उल्लंघन कर दियो, तीसरी आज्ञा में मैं सोच क्यों रहा हूं, मैं मेरी बुद्धि चलाई क्यों रहा हूं, मेरे स्वामी ने मुझको बुला लियो, आज्ञा दे दी, फिर कोई भी काम रह गए हो या नहीं रह गए हो, बाकी रह गए हो या हो गए हो, या सबको विचार मुझको कर लो है, मैंने दो आज्ञा भी मेरे अंदर ये विचार, ये तो अपन को समझा रहे हैं, वहां तो वो तो लोग सब लीला करी हुई है, पर वहां विष्णु भाई एक आज्ञा को भी पहली आज्ञा भाई वहां मैंने सोच कैसे लिया हुई, क्या अभी तो इतना सब काम बाकी है, या ये वाकू ओवर रूल करके मैं अपने काम में लगे, अरे वो काम करने की आज्ञा भी उनकी थी और उनको वापस वाकू वाइंड अप करने की
एट एनी स्टेज जो रह गए आपको भी वाइंड अप करने की आज्ञा उन्हीं की है. सो व्हाई एट ऑल एम आई सिंगिंग? पहली आज्ञा भाई कर दियो, दूसरी आज्ञा भाई तब भी वहां को उल्लंघन कर दिया, और वो बेचैनी सता रही थी कि ये क्या, कुछ मजा नहीं आ रही है, क्या हो तो जो बता रहे. अरे मालिक की आज्ञा हो गई, फिर अपन को सोच क्यों रहे. तीसरी आज्ञा भाई सब कुछ वाइंड अप करके जो सिचुएशन थी सीधे तीसरा जो मेन હતો वो काम कंप्लीट करके 10वें स्कंद को लीला वाइंड अप करें. तो सूक्ष्म क्या हो गए, उनकी आज्ञा हो गई करके बाधनम अबाधनम वा, गुरु आज्ञा के तो बाद हो रहे हो या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस है भी नहीं, कोई भी सिचुएशन में सेवा एवं मुख्या यथा अतः तथैव स्त्रिय करके आज्ञा कर दी नीचे. अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थिरता सुखम, क्योंकि वासु पढ़ो कोई आधार या संबल जीव के लिए नहीं है. जीव तो जान नहीं रहे करके अपन को निर्देश किया तू अपने सच्चे सुख को पहचान. वो जो भी यत्किंचित जो भी यहाँ आजकल की विषम परिस्थिति में अगर मनसा वचसा कर्मणा जो कुछ भी भगवत चेष्टा तेरे से हो जा रही है, चाहे भगवत नाम ले रहे हो या भगवत चिंतन कर रहे हो या भगवत सेवा कर रहे हो, मनसा वचसा कर्मणा, वह तीनों सर्कमस्टेंसेस में वो कभी व्यर्थ नहीं जाए करके वो ही तेरे सच्चे जीवन, वो ही क्षण ऐसे है कि तू सच्चो जियो, वही तू सच्चो जियो. ठीक है. ये सुख लास्ट में सुखम सुखम इति इति उत्तम. सुखम बोल्ड में आ गया ना, सुखम सुखम एवं, ये सुखम यहाँ पे लास्ट में जो आ गया देखिए मूल में, ये सुखम को यहाँ है इति एवं उत्तम एवं कही. ये इति ही एव ये सब क्या है, पंक्चुएशंस है, संस्कृत के पंक्चुएशंस है. पंक्चुएशन की पद्धति अब डेवलप हुई है. देयरफॉर संस्कृत में अल्प विराम इत्यादि विराम जैसे सिर्फ एक पूर्ण विराम के अलावा और कोई पंक्चुएशंस नहीं है. पंक्चुएशंस वर एक्सप्रेस्ड बाय दीज अव्यय. जितने भी जो अव्यय के जो प्रयोग किए उनसे वो एक्सप्रेस किया जाता था, और वो फ्लो ही ऐसा होता कि अपने आप मालूम पड़ जाता कि यहाँ क्या बात कही जा रही है. ये एक्सप्रेशंस को आज अपन उपयोग में ला रहे हैं. देयरफॉर अब जो मॉडर्न एडिटिंग है वह एडिटिंग के हिसाब से, वो प्रूफ रीडिंग के हिसाब से अपन ये एक्सक्लेमेशन है या विराम है या क्वेश्चन मार्क है ये सब अपन लगाने लगे. बाकी पहले कहीं ये सब नहीं होते. पहले इन वर्ड्स को ही ये चीजें एक्सप्रेस करी जाती है कि ये प्रश्नार्थक है क्या उदाहरणात्मक है या क्या. पढ़ जाओ गुजराती कंप्लीट. હવે સેવા કૃતિ વગેરે શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. સર્વપ્રથમ તો ગુરુ આજ્ઞા જે પ્રકારે બાધિત ન થતી હોય તે પ્રકારે સેવા કરવી આવશ્યક છે. जब तो कही कि भाई सेवा प्रमाण मूला एवं पुरुषार्थ पर्यवसायी, अन्यथा मनसी विधाय अन्यथा करणी न पड़ सकती. આ પ્રકારે ગુરુ આજ્ઞાથી સેવા કરવા વાળાઓને જો કદાચ કોઈ વિશેષ ભગવત આજ્ઞા થઈ જાય અને તે ભગવત આજ્ઞા ગુરુ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જતી હોય તો આવી પરિસ્થિતિમાં ભગવત આજ્ઞા મુજબ કરવું જોઈએ. આ આચાર્ય ચરણ પાદનમ વા હરિચ્છયા શબ્દોથી કહી રહ્યા છે. यदि बाधनम कस्य बाधनम, आज्ञा गुरु आज्ञायाः बाधनम यदि भवति हरि इच्छया, तो हमें हरि इच्छा ही है. અર્થાત આવી વિશેષ ભગવત ઈચ્છાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે જ ભગવત આજ્ઞા મુજબ કાર્ય કરવું જોઈએ. જો ન હોય તો ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન ન કરતા ભગવત સેવા કરવી જોઈએ. ગુરુ આજ્ઞા અબાધિત થતી હોય કે બાધિત થતી હોય, મુખ્ય તો ભગવત સેવા જ છે. ये वो भार है भाई. whatever the circumstances, तुम ये देखो ना कि क्या मूल में जीव के लिए कर्तव्य श्री महाप्रभु ने क्या बताया कि जीव भगवत अंश है, देयरफॉर भगवत सेवा करना वो ही वाको धर्म बन रहा है. सेवा ही सेवक धर्म. हम तो जन्म ही दास हैं, सेवक हैं, देयरफॉर वो सेवा करना भगवान अपना जीव का धर्म है. कृष्ण सेवा सदा कार्य. મુખ્ય તો ભગવત સેવા છે, તેથી જે પ્રકારે ભગવત સેવાની પ્રાધાન્યતા આવતી હોય તેવી જ રીતે રહેવું જોઈએ. આ જ ભાવને આચાર્ય ચરણોએ અત વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે.
આવી રીતે કરશો તો પરિણામ સુખકારી જ થશે. આ જ કારણે આપશ્રીએ એ સુખમ પદનો ઉપયોગ કર્યો છે. चलो आगे. कदाचित पुत्र आदि वियोग शंका जनित दुखेन चिंता संभवे गति आहु चित्तोदेग ચિત્ત ઉદ્વેગ उद्वेगम इति. कदाचित पुत्र आदि वियोग शंका जनित दुखेन, ये शब्द यहाँ तरीका से टूटेंगे. कदाचित पुत्र आदि वियोग शंका जनित दुखेन चिंता संभवे गतिम आहु चित्तोद्वेगम इति. चित्तोद्वेगम विधायापि परिवेद्य भविष्यति तथैव तस्य निवेदि मत्वा चिंता तम वेदेषु. नन्विदं अखिलं शक्यं अशक्यम अखिलम् अशक्यम् इव भाति तथा हि श्रवणम् आरभ्य सख्य पर्यंत आगतो हि पश्चात निवेदन वार्ता. ननु ऊपर ननु इदम नन्विदम. बाको नन्विदम को जब अपन अलग करेंगे तो वह को ननु इदम ननु इदम अखिलम अशक्यम इव भाति. और वहां की जब परिस्थिति आ गई तो उन्हें यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि आ બધું અશક્ય જેવું જણાય છે. નોટ પોસિબલ, જીવથી પોસિબલ નથી આ. કેમ કે સાધારણ કોઈ દુઃખ કે એવી પરિસ્થિતિ આવી જતી હોય તો એનો તો મનુષ્ય પોતે પણ આ પરિસ્થિતિમાં પોતાનું સંભળ પોતાનું ઇક્વિલિબ્રિયમ બેલેન્સ મેન્ટેન કરી શકે. બાકી જો ઘર પરિવારમાં આખી જન્મની નકરે નારાયણ પર આવું કંઈ જન્મ મૃત્યુ જેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય તો એ તો જીવ સ્વભાવ છે, મનુષ્ય સ્વભાવ છે કે એમાં ભલભલા માણસ પોતાનું આખું ગુમાવી દેશે. इट इज नॉट वेरी नेचुरल. तो ऐसी कोई महान कोई ऐसा आपातकालीन या दुख परिस्थिति आई तो गड़बड़ा जाएगा. तो हमें कैसे अपना बैलेंस धीरज अपनी वो कैसे मेंटेन कर सके. मनुष्य तो स्वभाव नहीं आके पॉइंट पे है तो वो मनुष्य जीव ही तो है. तो कभी ऐसी आ जाए तो वो हो जाएगा. वो धीरे धीरे टाइम लगे वह परिस्थिति में सुबह दुख में सुबह को अपने आप को बैलेंस करने. वह परिस्थिति में करके ननु इदम अशक्य भी वो भाती तथा ही करके ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे अपनो संबल को मेंटेन कर सके. तो वो बताने का तथा ही आ रीते ननु इदम अखिलम ननु इदम अखिलम. तो इदम में म खोड़ो और अ अखिलम को तो म खोड़ो और अ मिलकर के म हो गया. जैसे प्राकृत धर्मानाश्रयम तो वो म प्राकृत धर्मानाश्रय म प्राकृत निखिल धर्म रूपम इति. तो रूपम इति तो प्राकृत धर्म अनाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति. तो ऐसे ही यहाँ पे म और अ बन गया. हलोनंतरा संयोग ये व्याकरण का सूत्र है. चार सूत्र दोनों जोड़ करके हो गए. और नन्विदम जो है वहां में इको यणची है. इक स्थान यण से अति संहिता विषय. तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाए अच परे रहने पे. इक क्या है ई उरिल री और यण क्या है यवर अलग. या के स्थान पे इक के स्थान पे यण आदेश हो जाएगा अच परे रहते. अच क्या है अ ई उरिल री ओ अयो या છે. तो इक क्या भयो ननु ई उ ननु उ. तो नकारोत्तर वर्ती जो उकार है वो ननु में उ रहो
अच्छा ये तो हो गया एक, तो एक अपना पार्ट आ गया। अब इक को यण हो जाए तो यथासंख्य चलेगा। ई उ रील री, ई उ रील री, बापू य र य ई उ, तो य व र ल, री कु र, री कु ल, और ई कु य, और उ कु व। तो वा के बाद अच, तो ननु ई तो अ ई उ, ये अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये अच हो गए सारे के सारे स्वर। तो ये ई जो है ननु ईदम, तो ई में क्या स्वर आ गया ना, तो वो स्वर आ गया ई। तो ई बाद में वो अपन को मिल रहा है, और उकार मिल रहा है ननु में उ, तो उ और ई आया, तो बाकी जगह ई उ रील री, बापू य व र ल, तो उ है ना, तो उ विल गेट कन्वर्टेड इनटू व, तो क्या हो नन्वी, नन्विदम हो गया। तो वो नन्विदम की जगह नन्विदम, तो ये इक्विवेलेंट चीज सूत्र है। संस्कृत की यही मजा है कि हर चीज के लिए वहाँ पूरा एक नियम बना हुआ है, व्हाई दिस इज, क्या तरीका से वहाँ विपरिणाम जो हो रहा है, वो विपरिणाम क्यों हो रहा है शब्द का, ये उनकी खासियत है। देयरफॉर पूरी जो इतनी ये टेक्निकली और इतनी साइंटिफिकली ये पूरा को इंफ्रास्ट्रक्चर ले लियो है जो मॉडर्न संस्कृत है, कि वो जो माहेश्वर सूत्र है 14, वहां में पूरी संस्कृत आ गई। यहाँ में पूरी संस्कृतियां को बीज है, ये संस्कृति जो बनाने का जो ढांचा है ना, ये एकदम बीज रूप से एक बीज है, और वहां से सब चीज जो है वो जा रही है ऐसा पूरा। अगर वहां तुम समझ करोगे संस्कृत की, तो ये 14 सूत्र में यहाँ तक है समावेश, क्योंकि वो सारो जो सूत्रन को जो पाणिनि महर्षि ने मुनि ने जो पूरा या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सूत्रन को बनाया है, वो सब प्रत्याहार की सिद्धि पे है। ये जो अण एक अल, ये सब क्या है, ये सब प्रत्याहार, ये प्रत्याहार पे ही सारे नियम बनाए गए हैं। इको यणची, जहाँ तीनों जो है वो इको यणची, तो ये इको यणची सूत्र है उनको पाणिनि मुनि को। और इको यणची की वृत्ति क्या है, फिर वाकी टीका करी, टीका क्या, इको यणची तो खाली सूत्र है। अब हमें एक स्थाने यण से अच्छी संहिताया विषय, ये वाकी वृत्ति करी, सूत्र की वृत्ति को खोले, हमें ये सब जो है शब्द आ गए। उ को जो है वो मध्वरी, ये वो उदाहरण वहां पे मधुवरी, मध्वरी, मधुवरी, यानी नन्विदम, ननु इदम अखिलम अशक्यम, अशक्यम इव भाति, भाति न प्रतिभाति, એવું જણાય છે। ઈવ એટલે જેમ श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत आगतो ही पश्चात निवेदन वार्ता तत्र प्रत्येकं तदेव दुरापम इति दूरतरा निवेदनादि कपि श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत आगतौ ही पश्चात और निवेदन वार्ता, तो जो है वो न हो गया, पश्चात निवेदन वार्ता, तो पश्चात निवेदन वार्ता। तत्र प्रत्येकम तदेव दुरापम इति दूरतरा निवेदन दिक् अपि, दिक् अपि, तो दिक्
दिक या दिग, दिशा। निवेदन की दिशा तो बहुत 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 दूर की बात है। पहले एक एक ही जब श्रवणा भक्ति या श्रवणात्मिका भक्ति, कीर्तनात्मिका भक्ति, स्मरणात्मिका भक्ति, वंदनात्मिका भक्ति, अर्चनात्मिका भक्ति, ये सख्यात्मिका भक्ति, ये जो भी नवधाएं भक्ति है, ये एक एक ही वापड़ा मुश्किल पड़ रही है। तो तुम कहां ले वाकई अंत में सिद्ध होने वाली जो आत्मनिवेदन जो लास्ट है, वो निवेदन की दिशा तो बहुत दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, वो कहे कि तो ये जो निवेदन की जो वार्ता जो तुम कर रहे हो वो तो बहुत बहुत दूर की है। निवेदन दिक अपि, दिक माने दिशा, वो दिशा तो अभी बहुत दूर है भाई। कि तथा ही श्रवणम आरभ्य सख्य पर्यंत आगतौ ही पश्चात निवेदन वार्ता। श्रवण सु लेकर के सख्य जो भक्ति है, यहां तक तुम अपने जीवन में याकू कंफर्टेबली अडेप्ट कर लो। ये भगवत संबंध में श्री प्रभु और तुम्हारे संबंध में जो भक्ति जो बन रही है, वो भक्ति, क्योंकि जीव और परमात्मा के बीच को जो एकमात्र जो अभिव्यक्ति को जो माध्यम है वो है भक्ति। वो भक्ति नवधा को स्वरूप है वाको भक्ति को। तो वामे एक एक जो भक्ति है वाको कंफर्टेबली अपन आत्मसात कर लें, अपन श्रवणात्मिका भक्ति को समझ लें, वाके मूल स्वरूप को समझ लें और वाको अप्लाई करने लग जाएं अपने और भगवत संबंध अपने दोनों के बीच में, परमात्मा के बीच में। अपन स्मरणात्मिका भक्ति को समझ लें, वाको स्वरूप क्या है वाको समझ लें, वाके पश्चात वाको अपन आत्मसात करके और फिर भगवत श्री प्रभु के प्रति अपन अभिव्यक्ति को साधन बना लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तनात्मिका भक्ति है, वाकु ले लें, वाक्य स्वरूप को समझ लें, वाकु आत्मसात करके और वाकु एक अभिव्यक्ति को अपन माध्यम बना लें। ऐसे एक एक भक्ति के स्वरूप को समझना अनिवार्य है, वाकु आत्मसात करना अनिवार्य है। जब सख्य पर्यंत ये बात बन गई, तब तो जाकर के निवेदन की कहानी आ रही है, निवेदन की बात शुरू हो रही है। कहां डायरेक्ट तुम निवेदन की बात कर रहे हो? और वास स्थिति में जहां एक एक भक्ति ही वाकु साध, एक तो वाको स्वरूप समझना मुश्किल है, दूसरी स्वरूप समझेंगे तब जाकर के वाकु अपना करके और आत्मसात करने की बात है। आत्मसात करोगे तब अभिव्यक्ति आएगी। तो जहां एक भक्ति ही साधनी दुरापम जहां मुश्किल पड़ रही है भैया, तो तुम तो सख्य के बाद निवेदन की वार्ता कर रहे हो। तो जहां एक श्रवणात्मिका भक्ति को ही हम पूरा तो पहले समझ लें, निवेदन की दिशा तो अभी कहां ले, बहुत दूर बही रहे, बहुत दूर की बात है वो। तो निवेदन की बात कर का रहे हो या लिए आप બધું અશક્ય જેવું જણાય છે भाई। कैसे करेगा आदमी के, इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसी कोई ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी एक जैसी चलती रहे। जीवन को नाम ही है कि वहां कहीं ना कहीं जो है वो द्वंद्व आते रहे, ऊपर नीचे चढ़ा। जीवन को नाम ही संघर्ष है। तो यहाँ में अगर मनुष्य कभी याकू एक जैसा तो वाको पालन नहीं कर सकेगा ना, कभी वाके चित्त की वृत्तियां या प्रकार से सेवा पर बनाने को प्रयास जरूर करे वो, पर इट इज नॉट, वो मतलब अशक्य है। कभी मान लो अनुकूल परिस्थितियां आई, ठीक है, कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, और अनुकूल परिस्थितियां आई है तो ज्यादा जो है प्रमाद इत्यादि हो सके। कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो सब कुछ जो है बिल्कुल वैराग्य आ जाएगा, भाई को कुछ भी नहीं करना। सामान्य परिस्थितियां आ रही हो तो आपको ओवरकम करे इंसान। बट अगर ऐसे जीवन में ऐसे मृत्यु, जन्म मृत्यु जैसी स्थिति आ गई, वह सिचुएशन में क्या करेगा वो? यानी ये जो तुम कह रहे हो, ये बात तुमने बताई हो बराबर है, बट ये कोई इतनी सरल बात नहीं है। अतः सेवा परम स्थियताम, सेवा परम चित्तम विधाय स्थियताम सुखम। क्योंकि वो सब करने के लिए, वो विधान करने के लिए भक्ति करनी अनिवार्य है। भक्ति में ये सब, वो भक्ति को स्वरूप नवधा के रूप में वहां में एक एक के स्वरूप को समझना हो, आपको आत्मसात करना हो, फिर वहां जीवन के द्वारा वहां में अभिव्यक्ति होनी श्री प्रभु के प्रति एक एक भक्ति। तो वो कह रहे हैं कि तत्र प्रत्येकम तदेव दुरापम, जहां एक एक की बात है वो ही सिद्ध करना मुश्किल पड़ जा रहे हो, बाकी स्वरूप को समझना मुश्किल पड़ जा रहे हो। तो इति दूरतरा, ऐसी स्थिति में तो निवेदन दिशा, दिक जो है वो स्त्रीलिंग है, दिशा तो दिक याली आए और दूरतरा, क्योंकि दिशा स्त्रीलिंग है ना। देयरफॉर अगर पुल्लिंग शब्द हो तो दूरतर, और अगर नपुंसकलिंग हो तो दूरतरम, पर चूंकि दिशा प्रयोग आ रहे हो तो ऐसी आवी स्थिति में इति
निवेदन दिग अपि दूरतरा, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अतः तत्कृत चिंता अन्य वियोग चिंता आदि समाहिति ही निरर्था। समाहिति यानी समाधान करके तत्कृत चिंता या प्रकार को ये कैसे सब मुसु हो पाएगा। अखिलम अशक्यम इव भाति, मुझे तो डर लग रहा है कि भैया ये तो सब कुछ अशक्य जैसा है। तो या प्रकार की ऐसी सिचुएशन आने की चिंता, या अगर मेरा कहीं अन्य विनियोग हो गया या परिस्थिति में गड़बड़ा गया और मैं अपने मेरे लक्ष्य स्विच हो गया और कहीं और चलो गया, तो वह स्थिति की अन्य वियोग चिंता, अन्य कोई के जाने के कारण जो कुछ भी वियोग हो रहे और वह समय अगर मेरी भगवत सन्मुखता मेरी छूट गई, वह को वो प्रकार की अगर चिंता आदि समाहिति, फिर तुम मुकु अगर वह को समाधान कर रहे हो तो या प्रकार की समाहिति यानी वह को समाधान करनो मेरो वो निरर्था इति विचार्य साधन फले एकीकृत्य सर्व समाधानम आहुहु करके ये सारी परिस्थिति इनको वो को पूरा जायजा लेकर के और फिर फाइनली वो कंक्लूड करके बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम मदद्भिरेव सततम स्थेयम इति एव मे करके। मान लो ये सब चीज के कारण अगर मुझसे सेवा नहीं निभी फिर मेरी क्या गति हुई। हम सब समझ रहे हैं यार, यही हम कह रहे हैं कि तू ये सब बेकार की चिंता तू छोड़, सिर्फ इतना कर कि तू अष्टाक्षर महामंत्री की शरण भावना जो है वो तू सतत तू बस ये चालू कर। और वामे ये मान के तू तेरा सुख वामे ये इतना भी करते रहेगा ना तो बाकी की तेरी सारी पॉसिबिलिटीज के जो रास्ता है ना उनको तू ओपन रख। जो अपन कह रहे हैं भाई तुम गोकुल जाओ, यू आर जस्ट कीपिंग योर जो आगे तुम्हारा जो आत्मविकास है ना वो आत्मविकास, तुम गोकुल से जुड़े रहोगे तो एक बात तो निश्चित है कि तुम तुम्हारे जो आत्मोन्नति के जो मार्ग हैं वो मार्ग को तुम ओपन रखो। હવે કદાચ પુત્ર વગેરે કોઈ પરિવારજનથી વિયોગ થઈ જવાની આશંકા હોય અને તેથી મનમાં કોઈ પ્રકારના દુઃખની ચિંતા ઉત્પન્ન થતી હોય તો તેનું નિરાકરણ આચાર્ય ચરણ ચિત્તોદ્વેગમ વગેરે શબ્દોથી કરી રહ્યા છે। ઉપર બતાવેલા કોઈ પણ વિષયમાં चिंता ન કરવાનો ઉપદેશ અને પ્રભુની સમસ્ત લીલાઓને ધૈર્યપૂર્વક સાક્ષીવત જોતા રહેવાના આ બધા ઉપદેશ આપણને અસંભવ જેવા લાગતા હોય છે। તેનું કારણ આ કે શ્રવણથી લઈ શક્ય ભક્તિ સુધી પહોંચ્યા પછી જ નિવેદનની વાત આવે છે। હવે જ્યાં નવધા ભક્તિની પ્રત્યેક ભક્તિ જ પ્રાપ્ત થવી કઠિન હોય તો ત્યાં તો નિવેદનની દિશા પણ ઘણી દૂર છે। તેથી આ બધી નિવેદનની ચિંતા અને પુત્ર વગેરે અન્ય પરિવારજનોના વિયોગની ચિંતા વગેરેનું સમાધાન આપવું વ્યર્થ જ છે। क्योंकि पहले कह गए कि निवेदनम दुष्कर्तव्यम, निवेदनम दुष्कर्तव्यम। सेकंड श्लोक कर्तव्य में तो आई गई नहीं ये सब बातें, जीव के ऊपर आ जाए तो आपकी पॉसिबिलिटीज कह रहे हो। આવો વિચાર કરીને આચાર્ય ચરણ હવે સમાધાન અને ફલને એક સાધન અને ફલને એક કરીને આ બધી વસ્તુનું સમાધાન તસ્માન વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે। और यहाँ श्री महाप्रभु जब निवेदन की बात यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर अन्य भक्ति वैसे भी निवेदन के संग ही जोड़ रही है ना। क्या देखिए अल्पतो आगे भी सारे दूसरे ग्रंथों के अंदर भी ये सब बात करी है, शरणागति की बात भी करी है। तो आगे कंपाइल करते करते बाद में फिर निवेदन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी जो हो रहे हैं कि अभी श्रवणात्मिका भक्ति है या फिर सत्यात्मिका भक्ति तक जो 8 भक्ति भाई बाकी तो करते बाद फिर निवेदन आ रहे तो वो तो चिंता वैसे भी रूल आउट हो जाएगी कि पहले ही ये सब करने के बाद तो निवेदन तक पहुंचे। तो फिर ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होना। बात सही है, सीधे निवेदन का तो कोई जाएगा तुरंत निदान चाहिए
कोई व्यक्ति को तुरंत निदान की अपेक्षा हो और आपको तुम आयुर्वेद पे ले जाओ, तो धीरज कैसे रहेगी? आयुर्वेद को प्रोसीजर जो है वो जड़ मूल से है, दीर्घ साध्य है। अब कोई को अगर तात्कालिक नॉलेज में होकर कहीं कोई परिवर्तन की अपेक्षा है, स्वास्थ्य लाभ की आपको अगर अपेक्षा है, तो वो कैसे होएगा? आशंकाएं तो बहुत कुछ हो सके ना, मरता क्या ना करता। तो ये सब मनुष्य की जीव की आशंकाएं बताई जा रही है, जहाँ आशंका को निवारण श्री महाप्रभु कह रहे हैं, तो आपको हल बता रहे हैं। भक्तिवर्धिनी में भी वो यही चीज बताई, सिद्धांत रहस्य में भी यही चीज बताई, नवरत्न में भी यही चीज बताई, एक हरियाश्रय में भी यही चीज बताई। शरणागति और भगवत सेवा सूत्र रिलेटेड ये सारे ये ग्रंथ है, और यहाँ में जीव को कितना सपोर्ट मिल रहा है हर जगह। तुम भक्तिवर्धिनी पढ़ो तो देखो कौन सी चीज ऐसी है, क्या परिस्थिति में, मतलब श्री महाप्रभु जितना चिंतन कर रहे हैं जीव के लिए या वाकई हित के लिए, उतना कौन आचार्य करेगा? कोई नहीं कर रहा। ये सब वही तो परिस्थिति बताई जा रही है कि एनी सर्कमस्टेंसेस। अब वापस देखो आगे पढ़ो। અહીં સાધન અને ફલ ને એક કરવાની વાત કહેવામાં આવી છે। સાધનથી તાત્પર્ય શ્રવણથી લઈ સખ્ય સુધીની ભક્તિ છે અને નિવેદન એ ભક્તિનું ફલ છે। આગળના શ્લોકમાં આ બધાને એક કરીને સર્વ સમાધાન કરી દીધું છે। આ અર્થ છે। કારણ કે ઉપર બતાવેલી પદ્ધતિથી આપણા માટે આ બધું કરવું અશક્ય છે। कोई भेद नहीं है, तू अशक्य मान रहा है ना, करके ही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ साधन फल एक ही है। तू ये क्यों मान रहा है कि मैं पहले श्रवणात्मिका भक्ति को सिद्ध करूं, फिर कीर्तनात्मिका भक्ति को सिद्ध करूं, फिर स्मरणात्मिका भक्ति को करूं? ऐसे एक एक भक्ति साथ करके फिर मुझको निवेदन करेगा। हमारे यहाँ तो भगवत सेवा ही सब कुछ भक्ति को स्वरूप नवधा को बताया जरूर है, पर बाकी एक ही लया एक रूप में बाकी जो अभिव्यक्ति हो रही है करके यहाँ साधन ही फल है और फल ही साधन, कोई भेद नहीं है हमारे। पहले तू ये चिंता मत करियो कि इतनी यहाँ प्रकार से एक एक स्टेप में चढ़ूंगा तब जाकर के निवेदन आएगा, और मेरा निवेदन सिद्ध होएगा कि नहीं होएगा, भगवान निवेदन होएगा कि नहीं, मेरा स्वीकार होएगा कि नहीं, मेरा अंगीकार होएगा कि नहीं। तू जा मोमेंट में तेने ईमानदारी से या मार्ग पे तूने प्रयाण कर लियो, वह मोमेंट से ईश्वर ने तेरा सब कुछ स्वीकार कर दिया। यानी निवेदन होएगा कि नहीं वो तेरी चिंता ही व्यर्थ है। देयरफॉर चिंता काफी न कार्य। क्यों? भगवान अभी पुष्टि न करिष्यति लौकिक जगत। यानी श्रवण भी फल होगा, सब कुछ साधन फल एक ही करके तो साधन फल को एक करके बता दियो कि तस्मात् वदत् भी सततम। उसके बाद प्रश्न ઉપર બતાવેલ પદ્ધતિથી આપણા માટે આ બધું કરવું અશક્ય છે। તેથી બધા પ્રકારની શરણાગત થવા પર આપણને પ્રભુ જ એવું સામર્થ્ય આપશે। આ વાત હૃદયારૂઢ કરવી જોઈએ। भक्ति मार्ग બધા જ मैं बता रहा हूँ, गोकुल को रास्ता बता दो, दैट्स ऑल। बाद में शरण उसको पकड़ ले, वही में सामर्थ्य कि वो सब कुछ पूर्ण कर देंगे और रास्ता प्रशस्त कर देंगे। ભક્તિ માર્ગે બધા જ અંશનો વિચાર કરીને જીવ જ્યારે જોયે છે કે જીવ સાધ્ય તો કશું જ નથી, અને જ્યારે તે આ પ્રકારે પ્રતિબંધ અથવા તો પોતાનું અસમર્થ્ય જોય છે, ત્યારે જ તે બધા પ્રકારે ભગવાનને શરણાગત થાય છે। यस्मात् संस्कृत देखो, यस्मात् उक्तरीत्या स्वतः। ओके, तस्मात् आयो ने, तो तस्मात् अगेन तस्मात् है तो यानी यस्मात् होना चाहिए। यस्मात् एवं केम के એવું છે, તેથી તસ્માत् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणं मम वदत् वदद्भि एवं सततं स्थेय। यस्मात् उक्तरीत्या स्वतः सर्वं अशक्यं, यस्मात् अतः यत्तदोर्नित्य संबंधः। केम के उक्त रीत्या जे पहला कह્યું તે પ્રમાણે स्वतः પોતે सर्वम ये सब कुछ करनो अशक्य जैसो प्रतीत हो रहे हो। अतः તેથી सर्वात्मना शरणागतौ, सर्वात्मना अंशात्मना नहीं पर सर्वात्मना जब एक बार श्री प्रभु के शरण में आ जाने पे प्रभुरेव संपादयिष्यति इति हृदयम्
बापू हृदय में बिल्कुल बापू दृढ़ कर लो ये बात कि प्रभु ही सब कुछ संपादन करेंगे। इति हृदय में, यहाँ में कहीं भी संदेह मत रखिए, आपको बिल्कुल अपने हृदय में बिल्कुल स्पष्ट कर लो। पर वो सर्वात्मना शरणागतौ, ये जरूरी है। वो अंशात्मना शरणागति नहीं हो सके, तो सर्वात्मना शरणागति वो जरूरी है। भक्ति मार्गीयान सर्वान अंशान विचार्य तत्र प्रतिबंधम स्व अशक्ति च, दो चीज, तत्र प्रतिबंधम, भक्ति मार्ग के साधना प्रणाली के, भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली के सारे पासान को अवलोकन कर लें, वहां पे R&D कर लें, वो करने पे तत्र वहां में जो आने वाले जो प्रतिबंध है, जो श्री महाप्रभु ने सेवा पर प्रतिबंध में बताया कि भोग प्रतिबंध और उद्वेग की जो है सेवा के 3 बाधक हैं, तो उनपे और स्व अशक्ति, जब जीव अपनी खुद की असामर्थ्य या अशक्ति को जब विचार कर ले, वह सचेत पश्यति, यदि वो देख रहे हो, तदा सर्वात्मना तथा भवति नित्यम इति नैरंतर्यम उच्यते, अन्यथा कालेन असुर धर्म प्रवेशस्यात्, ये सर्वात्मना शरणागति की बात कही। अगर टुटक पुटक करोगे तो वो जो वाइब्रेशन है वाकई बात तरीका के, तो वो मोटिवेशन या अपलिफ्टमेंट तुम्हारा नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि बाहर को माहौल ही इतना तीव्र है, बाहर को सांसारिक लौकिक वातावरण इतना तेज है, देयरफॉर तुमको जैसे वो टावर की रेंज तुमको मिलती जाएगी, द मोमेंट तुम वो टावर की रेंज में से बाहर चले जाओगे, सिग्नल वीक पड़ जाएंगे, तो तुम जो है वार्तालाप नहीं कर पाओगे। या ये जरूरी है कि तुमको जो टावर है बाकी पेरिफेरी में तुम रहो, और वो टावर की पेरिफेरी में रहने के लिए ही वो 3 मार्गन को अपन को रास्ता बताए हो कि यदि तुम भगवत सेवा वाले जीव हो तो जो भक्ति वर्धिनी में बताए गए उपाय हैं उनको करो, अन्यथा अगर शरणागति के द्वारा कर रहे हो तो अतस्तेम हरिस्थाने, ये तो उनके लिए अतस्तेम हरिस्थाने बताई, या वहां जगन्नाथ श्रीपट विठलेश्वर वेंकटे तथा हिजारी वाली बात बताई। तो ये सब क्यों उपाय बताए जा रहे हैं? ये उपाय यानी बताए जा रहे हैं कि तुम जो नेटवर्किंग वाली जो सिग्नल्स जो तुम्हारे टावर के स्ट्रॉन्ग है, अन्यथा कालेन असुर धर्म प्रवेशस्या, अगर लंबो समय हो जाएगा तो धीरे धीरे असुर धर्म प्रवेश होने की संभावनाएं हैं। चल, કારણ કે ઉપર બતાવેલી પદ્ધતિ આપણા માટે આ બધું કરવું અશક્ય છે, તેથી બધા પ્રકારથી શરણાગત થવા પર આપણને પ્રભુ જ એવું સામર્થ્ય આપશે। આ વાત હૃદયારૂઢ થવી જોઈએ। ભક્તિ માર્ગીએ બધા જ અંશનો વિચાર કરીને જીવ જ્યારે જોઈ છે કે જીવ સાધ્ય તો કશું જ નથી, અને જ્યારે એ પ્રકારે પ્રતિબંધ અથવા તો પોતાનું અસમર્થ જોઈ છે, ત્યારે જ તે બધા પ્રકારે ભગવાનને શરણાગત થાય છે। નિત્યમ શબ્દનો અર્થ છે નિરંતર। શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ મંત્રનું નિરંતર અનુસંધાન કરવું જોઈએ, આ કહ્યું છે, નહીતર કલિકાલથી આસુર ધર્મનો પ્રવેશ થઈ જાય છે। अंतःकरणे तथा भावे अतथा भावे वा तथा वदनम आवश्यकम इति ज्ञापयितुम सततम एव वदति इति उक्तम। चाहे कोई भी प्रकार की तुम्हारी स्थिति हो, अंतःकरण में क्या कैसो भी भाव हो, फिर भी तथा वदनम या प्रकार से अष्टाक्षर महामंत्र को जब सदा सर्वदा करते रहो। इति उक्तम एवं सती लोक शिक्षा अपनी अनुषंगिकी सिद्ध्यति, करके आंसू एक लोक शिक्षा भी हो जाए कि जब तुम कोई भी चीज में लगे रहो, इररिस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, पर वो कहीं ना कहीं वाकई निरंतरता है। जैसे कहें कि नहीं कि सच निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्काला से भी तो दृढ़ भूमि। तो कोई भी व्यक्ति को जब अपना प्लेटफॉर्म मजबूत करना हो तो वहां पे 3 एलिमेंट बताए गए। सतु दीर्घ काल, एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, निरंतर बाकी निरंतरता होनी चाहिए, नहीं कि आज की हो 2 दिन छोड़ दियो, आज की हो 2 दिन छोड़ दियो, वो नहीं। बस दीर्घ काल, निरंतर और सत्काल, जो क्वालिटी है वहां में, वो क्वालिटी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, सत्काला से भी तो दृढ़ भूमि। तब जब तुम अपनी क्वालिटी टाइम 5 घंटा दे रहे हो बिना तुम्हारे वहां में कोई रुझान के, वो बिना
5 घंटा भी देना तुम्हारा व्यर्थ है, और तुमने अगर घंटा भर भी दे दी हो क्वालिटी सूट, तो यू विल अचीव द रिजल्ट। तो दीर्घ काल लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और निरंतरता से चलते रहो, और वहां में जो समय है वहां में क्वालिटी टाइम दो। दीर्घ काल निरंतर सत्काला सेवितो दृढ़ भूमि, तब वो जो भूमि बने ना, वो प्लेटफॉर्म मजबूत बने। करके लोक शिक्षा अपि आनुषंगिकी सिद्ध्यति एवं उक्त प्रकारेण सेवा परतरः स्थेयम् इति अर्थो वा ननु इदमपि न स्व शक्यम इति आशंक्य यमे वैश्य वृणते इति श्रुतम श्रुतेर मे मतिरेव एवं प्रकारिका एव इत्यर्थः। चलो, આપણા અંતઃકરણમાં બધી જ રીતે શરણાગતિનો ભાવ હોય કે ન હોય, નિરંતર શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલવું આવશ્યક છે। આ બતાવવા માટે આચાર્ય ચરણોએ સતતમેવ વદતિ કહ્યું છે। જ્યારે આપણે આ પ્રમાણે સતત અષ્ટાક્ષરનો જાપ કરીશું, તો આપણું આવું આચરણ આપમેળે જ લોકમાં બીજાઓને પણ આવી શિક્ષા આપશે। અથવા આવો અર્થ કરી લઈએ કે ઉપર કહેલ પ્રકારથી શ્રી કૃષ્ણ શરણમનું અનુસંધાન રાખતા સેવા પર રહેવું જોઈએ। અને જો આટલું કરવું પણ આપણા માટે અશક્ય થતું હોય, તો આચાર્ય ચરણ એમનો સિદ્ધાંતનો નિષ્કર્ષ, જેને આ પરમાત્મા સ્વીકાર કરી લે છે, यमे वैश्य તે જ वृणते જીવને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે। આ શ્રુતિના અનુસારે કહી રહ્યા છે। મારી મતિ તો આ જ પ્રકારની છે। આ અર્થ છે। अब ये तो अपनी एक प्रारंभिक रीडिंग है, जो हमें पहले अपन ने देख ली। अब या कि एक आध बार रीडिंग करके फिर टीका शुरू करें, ताकि कोई भी एक टीका तुम्हारा एक ग्रंथ बिल्कुल सांगोपांग कंप्लीट होगा। थोड़ा और अंदर डीप जा करके हर एक शब्द को, ये तो अभी एक अपन की ऊपर की खाली मूल की रीडिंग है, शब्दार्थ है, चलिए यहाँ में कहीं और अपन गए नहीं है, पर अब यहाँ में थोड़ा आगे चल करके एक एक शब्द को डीपली देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए भैया के पीछे को बैकग्राउंड क्या है। मूल पहले समझने के बाद या फिर थोड़ी रीडिंग लगाते रहो। जब एक बार तुमको या कि इंडेक्स बिल्कुल पूरी ख्याल में आ जाए, तुम्हारे चित्रण जो थोड़ा सामने खड़े हो जाए, फिर आके अपन समझ जाए। आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में, जासोत निबेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।